तो चलिए पहले ऑर्डर देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऑर्डर है FIR नंबर 197/21 PS द्वारका साउथ। और आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 3 एपिडेमिक एक्ट एंड 420/269/188/120B/34 IPC। तो एपिडेमिक एक्ट के अंदर है। और ये है क्या कहता है, द अर्जेंट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन वाज कंडक्टेड फ्रॉम माय रेजिडेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीजा सिस्को वेबएक्स। इसको हम छोड़ देते हैं। अब आप देखिए इसमें ये क्या कहते हैं, द प्रेजेंट एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द IO फॉर रिलीजिंग द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इन द प्रेजेंट FIR. It is submitted in the application that on 4th May 21, 12 oxygen concentrators were seized from the accused person Vinay Agarwal and Akash Vashisht, and all of them were deposited in police station Dwarka, Malkhana. It is also submitted in the application that many police personnel were suffering from COVID-19 and therefore these oxygen concentrators can be used for saving life of the police personnel. Learned applicant submitted that the seized oxygen concentrators be released in the best interest. तो बेस्ट इंटरेस्ट इन्होंने क्या बोलने की कोशिश करी, और ये सब पहले की जजेस वगैरह के साथ ये सब मेल जोल है इन लोगों की। इन्होंने जिस तरह पुलिस वालों ने बनाई है, पर इनको मिला कुछ नहीं। आप आगे देखिएगा इनको क्या मिलता है। इनको सिर्फ और सिर्फ इनको 3 ऑक्सीजन जनरेटर देते हैं, बाकी सब ऑक्सीजन जनरेटर जजेस खुद रख लेते हैं। Heard record pursued. In the present FIR, the police has seized 12 oxygen concentrators. No useful purpose would be solved to retain the oxygen concentrators in police Malkhana, and the same should be circulated back for the use of needy patients. So needy patients को आप देखिए। In this regard, it is pertinent to mention that judicial officers, due to their nature of work and also exposed to deadly coronavirus, a large number of judicial officers and their families in Delhi are infected with COVID-19 virus, and unfortunately 2 members of the Delhi judiciary named Learned Family Judge Shri Kovai Venugopal and Learned Metropolitan Magistrate Dwarka Shri Kamran Khan have lost their lives due to COVID infection. Ergo, in the best health interest of police officer, judicial officer and their family members, this court deems it fit to release and put to immediate use the 12 concentrators seized in the present FIR for medication of police officers, judicial officers and their family members. The 12 oxygen concentrators be released in the following manner. The oxygen concentrator 1 or 2 oxygen concentrators be released to DCP Dwarka for the use of police officials who are infected with COVID infection. 3 oxygen concentrators be released to Office of Learned Principal District Session Judge Tees Hazari. 2 oxygen concentrators be released to the Office of Learned Principal District and Session Judge Dwarka. 3 oxygen concentrators be released to the Office of Learned Principal District and Session Judge Saket. Oxygen concentrator be released to COVID Health Center at Delhi Judicial Academy Dwarka. Dear friends, जहां एक तरफ कोरोना की महामारी के समय, सेकेंड वेव के समय लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोगों के लिए कंसंट्रेटर ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण हो गया है, और वहां पर ही जिस देश की न्याय प्रणाली को लोगों को ऑक्सीजन देना चाहिए, कंसंट्रेटर देना चाहिए, वो क्या करती है, उसको एक मौका भी नहीं मिला। हमारी यहाँ की न्याय प्रणाली, हमारे यहाँ का एक जज ऑक्सीजनरेटर की चोरी करता है, और वो भी फॉर्मली चोरी करता है। फॉर्मली का मतलब है अपने ऑर्डर के थ्रू चोरी करता है। ना उसका कोई मॉरल राइट है, ना उसका कोई अदरवाइज राइट है कि वो ऑक्सीजनरेटर अपने जजेस फ्रेटर्निटी के लिए रखे। ये हमें दिखाता है हमारी जुडिशरी, हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारे जजेस कितने गिरे हुए हैं। और आपको क्या लगता है, ये जो जज ने, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने जो किया होगा, ये क्या उसने ऐसे ही कर लिया होगा? उसने सुओ मोटो एक्शन ले लिया होगा? बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर कहीं ना कहीं सीनियर जजेस का
चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उन जजेस का हाथ जरूर होगा। उन्होंने कहीं ना कहीं आपस में बात करी होगी कि भैया कुछ ऑक्सीजनरेटर सीज वगैरह होते हैं तो कोशिश करना किसी तरह अपने लोगों के लिए दिए जाए। तो ये है हमारे जजेस की सोच। तो ये क्या न्याय देंगे जहां पर एक जगह लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजनरेटर्स की जरूरत है, यहां पे ये जजेस ऑक्सीजन और ऑक्सीजनरेटर्स को एज अ बैकअप बना के चल रहे हैं। फॉर एन आर्ग्यूमेंट से कि ये जरूर कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे भी मौतें हो रही है, भी मौतें हो रही है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए। हु द ब्लडी आर यू टू रिटेन द ऑक्सीजनरेटर्स फॉर योर ब्लडी इंटरेस्ट? दिस इज एक्सट्रीमली सैड। दिस शोज जिस न्याय प्रणाली के पास आप लोग जाते हैं जस्टिस की उम्मीद लेके, उस न्याय प्रणाली ने आज फिर एक्सपोज कर दिया है वो एक गंदी नाली की तरह है, जो आपको जस्टिस तो दूर की बात है, जो अपना इंटरेस्ट पहले देखती है। और मैं यहां पे पूछता हूं हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कि भैया आप क्या ऐसे जजेस के अगेंस्ट एक्शन लेंगे? क्या आप कानून लेके आएंगे कि ऐसे जजेस, ये तो कोरोना के टाइम इन्होंने ये हाल कर दिया है, तो आप सोचिए जो आम आदमी के साथ ऑन अ गिवन डे, ऑन अ कॉमन डे क्या होता है, वहां ये लोग क्या करते होंगे। तो आपने जैसे शुरू के ऑर्डर में देखा होगा कि किस तरह जजेस ने 2 तो पुलिस वालों को दे दिए, जबकि उन्होंने कहा कि भाई पुलिस वालों ने कहा भाई बहुत सारे पुलिस वाले बीमार हो रहे हैं, और वो वाकई में हो सकता है सही हो, क्योंकि वो लोग बेचारे सड़कों में खड़े हैं, वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, उन तक तो समझ आता है। बट फिर भी ये कोर्ट उनको ये ऑक्सीजनरेटर सीज नहीं दे सकता। कोर्ट परहैप्स डायरेक्ट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को, या रिक्वेस्ट कर सकता है, डायरेक्ट भी नहीं रिक्वेस्ट कर सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया था आज से 3 महीने पहले कि पहले वैक्सीनेशन आप वकीलों को लगाए, तो रिक्वेस्ट कर सकता है। बट यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने 2 उन लोगों को दिए जो पुलिस वाले बेचारी महामारी से सड़कों में जूझ रहे हैं। एंड दीज बगर्स who are sitting in the courtrooms, who are doing virtual hearings, इन्होंने बाकी के 10 कॉन्सेंट्रेटर्स अपने पास रख लिए बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी अथॉरिटी के इन्होंने अपने पास रख लिया। आप सोचिए क्या हाल हो रहा है इस देश का, अपने आप में बांट दिया। अरे भैया तुम्हारा काम है जज कि तुम कोई एसडीएम, डीएम या दिल्ली गवर्नमेंट को वो ऑक्सीजनेटर कॉन्सेंट्रेटर दो, लेट देम डिसाइड हु इज द मोस्ट नीडी। हु आर यू टू डिसाइड दैट द सीज्ड कॉन्सेंट्रेटर शुड बी रिटेन्ड फॉर जुडिशियल एम्प्लॉयज? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट फार एंड वाइड। ये एक और कड़ी है, एक और एक्सटेंशन है कि किस तरह हमारे देश की जुडिशरी जजेस सोचते हैं, सेल्फिश है, इनका आईक्यू लेवल क्या है, और सबसे बड़ा ये किस तरह बेशरम है, और इनको मौका मिले तो ये डकैती जैसी चीज भी नहीं छोड़ते हैं। ये क्या है? ये चोरी डकैती नहीं है तो ये क्या है कि आपने किसी और का हक, पब्लिक का हक, सैलरी जजेस तुम लोगों को पब्लिक के टैक्स पेयर मनी से मिलती है। जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कंसल्ट योर डॉक्टर्स। यू हैव नो राइट टू यूज द सीज्ड ऑक्सीजनरेटर्स। अपने पैसों से खरीदो, वो भी ब्लैक मार्केट से नहीं। जब आज से 2 महीने बाद अवेलेबल होगा ना कॉन्सेंट्रेटर, तब जाके खरीदना। अगर इतनी हिम्मत है तो जुडिशरी जजेस ये दिखाओ। एंड वंस अगेन लॉ मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद, दो आई नो यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम बिकॉज यू आर अ लॉयर योरसेल्फ, but Prime Minister, you are not a lawyer, you should not have a soft corner for them. Kindly bring in laws that such dakati does not happen anymore. If you like this video, once again share it far and wide. Thank you so much.